Kriti store books sold books worth rupees 2,85,891 in the first week of June and books worth rupees 4,768 in the second week of the month. How much was the sale for the 2 weeks together? In which week was the sale greater and by how much? तो इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं. ठीक है. फर्स्ट है कि हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स, मीन्स दोनों वीक्स के हमको ऐड करने हैं. नेक्स्ट इज इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर, कौन से वीक में सेल ग्रेटर था तो हमें पता करना है. और देन बाय हाउ मच, जब भी बाय हाउ मच बोला जाए हम करेंगे सब्ट्रैक्ट. सो पहले ऐड, देन कंपेयर, देन सब्ट्रैक्ट. लेट्स डू इट. क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन. Here, number of books sold on first week of June is equal to 2,85,891. Number of books sold on second week of June is equal to 4,768. Now the sale of book for the 2 week मीन्स हमें इन दोनों को ऐड करना है. 2,85,891 प्लस 4,768. Add up here. One plus 8 9, 9 plus 6 15, hand में 1, 8 plus 1 9, 9 plus 7 16, hand में 1, 5 plus 1 6, 8 6. मीन्स टोटल कितना हुआ है 6,86,659 बुक्स टुगेदर हमने सोल्ड किया है. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच. सो इन द फर्स्ट वीक the number of books sold is equal to 2,85,891 and in the second week the number of books sold is equal to 4,768. so इसे हम जान सकते हैं कि कौन सा वीक में, तो हम देख रहे हैं सेकेंड वीक में ज़्यादा बुक्स सोल्ड किए हैं. तो नाउ इन द सेकेंड वीक मोर नंबर ऑफ books sold than first week by how much. जबकि बीच में क्या डिफरेंस है तो अब हम इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे. विच वन इज द ग्रेटर नंबर, 4 लाख इज द ग्रेटर नंबर. सो हम करेंगे 4 लाख में से 2 लाख माइनस कीजिए. 4,768 minus 2,85,891. 8 minus 1 7, 6 minus 9 is not possible. Take the help. This becomes 16. 16 minus 9 7. 6 minus 8 is not possible. Then take a help. This become 3. This become 9. This become 9 and this become 16. 16 minus 8 8. 9 minus 5 4, 9 minus 8 1 and 3 minus 2 1. Means by 1,14,877. सेकेंड वीक में 1,14,877 मोर बुक्स बिके हैं. सो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. Find the difference between the greatest and the least number that can be written using the digits 6, 2, 7, 4, 3 each only once. Means ये जो नंबर दिया हुआ है इससे हमें एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और एक छोटा नंबर, और दोनों को डिफरेंस मीन्स माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. लेट्स डू इट.
Question number 5 solution. Okay, given digits is equal to 6, 2, 7, 4, 3, and we have to make the greatest and the smallest number using this. Okay, greatest number, स्मॉलेस्ट नंबर. ग्रेटेस्ट नंबर जब भी निकालना है हम नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, और जब भी स्मॉलेस्ट नंबर लिखना हो हम नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे. ग्रेटेस्ट नंबर मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर. 7, 6, 4, 3, 2. Now next, smallest means ascending order. 2, 3, 4, 6, 7. The difference between greatest and smallest number is equal to 26,432, 23,467. Now minus कीजिए. 2 minus 7 is not possible. This become 2, 2 become 12. 12 minus 7 is equal to 5. 2 minus 6 is not possible. Again take help. This become 12. 12 minus 6, 6. 3 minus 4, again not possible. Take the help. 13 minus 4, 9. 5 minus 3, 2. 7 minus 2, 5. So this is the difference between the greatest and the smallest number by using this number. Next, question number 6. A machine on an average manufactures 2,825 screws a day. How many screws did it produce in the month of January 2006? If in a one day 2,825 screw the machine is manufacturing, so January 2006 means January 2006 का हो, 7 का हो, 8 का हो, होंगे उसमें 31 days. means हमें मल्टीप्लाई करना है 31 into 2,825. Now come to question number 6 solution. Given statement in manufacture. Write down. Manufacture screw in a day 2,825. Number of screw it produce in the month of January 2006. तो भाई मंथ ऑफ जनवरी में यहाँ एक दिन में कंपेयर, वो देखो यहाँ पे एक दिन में 2,825. तो जनवरी में कितने दिन होते, चाहे वो 2006 का हो चाहे वो 2007 में. तो हमें यहाँ पे लिखेंगे नोट, जनवरी इज इक्वल टू 31 डेज. जनवरी मीन्स 31 डेज. एक दिन में इतना, तो 31 डे में कितना स्क्रू वो करेगा, दैट 31 डेज into 2,825 means we have to multiply 2,825 into 31. 5 ones are 5, 2 ones are 2, 8, 2. One time cut. 3 5s are 15. Hand में 1, 3 2 6, 7. 3 8s are 24. Hand में 2, 3 2 6 plus 8. Now add. मीन्स पूरे जनवरी मंथ में वो कितना प्रोड्यूस करेगा, 87,575. ओके. Next question number 7 is, a merchant had rupees 78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radio sets at rupees 1,200 each. How much money will remain with her after the purchase? Means उसके पास कुछ पैसे थे, उसने 40 रेडियो खरीदे 1,200 रुपये एक करके. एक रेडियो का दाम 1,200 रुपये. मीन्स अब खरीदने के बाद उसके पास कितने पैसे बच गए,
तो दैट मीन्स हम सबसे पहले रेडियो का पूरा दाम निकालेंगे 40 इंटू 1200, उसके बाद जो आएगा अमाउंट उसमें से माइनस कर देंगे, तब हमें पता चलेगा रिमेनिंग अमाउंट कितना है। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन। गिवन अ मर्चेंट हैड rupees 78,592 with her, now purchased 40 radio at rupees 1200 each। ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, 40 रेडियो उसने खरीदा 1200 ईच। मीन्स हमें क्या करना होगा, अगर एक चॉकलेट 10 रुपए का है तो हमने खरीदा 40 चॉकलेट्स, दैट मीन्स 40 इंटू 10 करते हैं। सिमिलरली 40 इंटू 1200 विच इज इक्वल टू 1 2 3, देखो यहाँ लास्ट में 0, यहाँ लास्ट में 2 0, 3 0 हमने बैठा दिया, 12 4 जा 48, मीन्स 48,000 का उसने रेडियो खरीद। में आगे क्या पूछ रहा है, हाउ मच मनी विल रिमेन with her after the purchase। Here the money remain with her, remain मतलब बचा हुआ, तो मर्चेंट ने इतना रुपीस था उसके पास और उसने 40 रेडियो खरीद लिए 1200 रुपये करके एक रेडियो, 48,000 का हो गया। नाउ हम इसे करेंगे माइनस, 78,592 रुपीज़ में से उसके खर्च हो गए 48,000, हम कर देंगे माइनस, 8 माइनस 8 0, 7 माइनस 4 3, मीन्स उसके पास अब बचे 30,592 आंसर।